Sat Shri Akal friends, welcome to Learn Maths Online YouTube channel. This is lecture number 3 of sequences and series, class plus 1. So in this lecture we will discuss about exercise 9.3 in which we will discuss geometric progression. In exercise 9.2 we have discussed about arithmetic progression. Now we will talk about the geometric progression. So first of all, what is geometric progression? A sequence A1, A2, A3, A4 up to AN is called geometric progression if each term is non-zero and ratio of two consecutive terms is constant. Like a ratio of k plus 1th term is to kth term is r constant for k greater than or equal to 1. जिस प्रोग्रेशन में कोई भी दो कंसेक्टिव टर्म्स की रेशो जो है वो सेम रहती है, उस जो सीक्वेंस को हम लोग ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन या ज्योमेट्रिक सीक्वेंस कहते हैं. तो हमारे पास ये कुछ नोटेशंस हैं जो हम यूज़ करते हैं. लाइक फर्स्ट टर्म को इसमें भी हम लोग यही कहते हैं, जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है. अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में भी कहते थे ए, और जो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है आपको याद होगा जो हमारे पास एपी थी उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म थी ए प्लस डी. उसमें डिफरेंस सेम था, यहाँ कॉमन रेशो सेम रहेगी. तो ए प्लस 2d ये थी इसकी जनरल फॉर्म एपी की, और जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है उसकी जनरल फॉर्म क्या आएगी ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब. इसमें आप चेक कर सकते हैं हेयर रेशो ऑफ एनी टू टर्म्स ऑफ दिस सीक्वेंस रिमेन्स कांस्टेंट सेम. लाइक सेकेंड टर्म ओवर फर्स्ट टर्म ए आर ओवर आर इज इक्वल टू आर. ए रेशो of third term is to second term ar square over r is again r. यहाँ पर ये फर्स्ट टर्म है और यहाँ रेशो जो है कॉमन रेशो r को r के साथ डिनोट की जाती है कॉमन रेशो. जो जनरल फॉर्म है या स्टैंडर्ड फॉर्म है हमारे पास ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की, वो याद रखनी है ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब अप टू सो ऑन. नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट general term of a GP. What is general term? AN. What was the general term of AP? That was AN is equal to A plus N minus 1D. General term of GP is AN AR raised to power N minus 1. Sum of n terms of a GP. What was the formula to calculate the sum of n terms of AP? Sn n over 2a plus n minus 1d. Here to calculate the sum of first n terms of a GP, formula is Sn is equal to a1 minus r raised to power n over 1 minus r, or Sn is equal to a r raised to power n minus 1 over r minus 1. We can use any of these two formulas to calculate the sum of first n terms of a given GP. Next, we will talk about the geometric mean. Geometric mean of two positive numbers a and b is number under the root a, b. You might be remember that arithmetic mean was a plus b over 2. Arithmetic mean between two numbers was a plus b over 2, and here geometric mean of two positive numbers is a number under the root a into b. So keep in mind what is the relation between am and gm. Relation between am and gm, let a and g be am and gm of two given positive real numbers a and b respectively. क्या रिलेशन है? A capital A is used to denote arithmetic mean. So a capital A will be equal to a plus b over 2, and capital G is equal to under the root ab.
So easily we can conclude that A means arithmetic mean is always greater than or equal to geometric mean. Keep in mind, for 1 mark question, arithmetic mean is always greater than or equal to geometric mean. तो कुछ और थोड़ी सी डिस्कशन हम लोग कर लेते हैं कि किस तरह की सीक्वेंसेस जो हैं उनको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की कैटेगरी में रखते हैं, लाइक 2, 4, 8, 16, 32। इस तरह की जो प्रोग्रेशंस हैं उनको हम लोग ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में लेके आते हैं। लाइक इसमें रेशो चेक करते हैं, सेकेंड टर्म ओवर फर्स्ट टर्म, to third term over second term, to fourth term over third term, 16 over 8 again 2. So here ratio of any two consecutive terms is remains constant. So we can say that this progression is an example of geometric progression. इस तरह की सीक्वेंस को हम लोग ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कहते हैं। ऊपर बताया जा चुका है, फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ। लास्ट टर्म यहाँ इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, 2 raised to power 1, 2 raised to power 2, 2 raised to power 3, 2 raised to power 4 up to so on। और जैसे हम लोग जनरल टर्म इसकी लिखते हैं तो an a r raised to power n minus 1। सम की बात करते हैं तो सम a r raised to power n minus 1 over r minus 1, or we can say 1 minus r raised to power n over 1 minus r. Here a is first term, r is common ratio, and n is number of terms. So let us start exercise 9.3. First question, find the 20th term and nth terms of the GP. Here GP is 5 by 2, 5 by 4, 5 by 8. Given GP, so here easily we can observe that A is 5 by 2, A is 5 by 2, and we can calculate R, dividing second term dividing by first term, and by solving R is equal to 1 by 2. So formula of general term or nth term is A r raised to power n minus 1, A r raised to power n minus 1. After substituting the values A and R and solving, our nth term is 5 into 2 raised to power n, 5 over 2 raised to power n, or we can say that 5 into 1 by 2 raised to power n. This is the nth term, and from nth term we can calculate any term like 20th term. Just replace n with 20, so 20th term will be 5 over 2 raised to power 20. So this is the final answer. These two things were required. One nth term, that is equal to 5 over 2 raised to power n, and the second is 20th term, that is 5 over 2 raised to power 20. Question number 2. Question number 2, find the 12th term of a GP whose 8th term is 192 and common ratio is 2. So we are given 8th term, that is 192, and it can be written as A into r raised to power 8 minus 1, because an is equal to ar raised to power n minus 1. So after simplifying, A r raised to power 7 is equal to 192, r is given 2, common ratio is 2, so A into 2 raised to power 7 is 192. After simplifying, A is equal to 3 over 2, first term is 3 over 2. Now we can calculate easily 12th term. So A 12th is A into r raised to power 11 using the same formula. And here A is 3 by 2 and R is 2. So 3 by 2 into 2 raised to power 11. After simplifying, 3 into 2 raised to power 10. One power will be cancelled.
So 3 into 2 raised to power 10, and after the simplification, final answer is 3072. 12th term is 3072. Next question, third, the 5th and 8th term, 5th, 8th and 11th terms of a GP are P, Q and S respectively. Show that Q square is equal to PS. So given that for 5th term is P, 8th term is Q and 11th term is S. If 5th term is P, then A into R raised to power 4 will be equal to P, and 8th term is Q, so A into R raised to power 7 is Q. Again we are using this formula, AN is equal to AR raised to power n minus 1. So A11 is equal to S, so AR raised to power 10 is S. So using 1, 2 and 3, we will take left hand side Q square. Q is A into R raised to power 7. So A into R raised to power 7 whole square, which will be equal to A square into R raised to power 14. It can be written as A into R raised to power 4 into A into R raised to power 10, where A into R raised to power 4 is P and A into R raised to power 10 is S. So here Q square is equal to P into S. This is our target. We are to show that Q square is equal to PS. Question number 4. The 4th term of a GP is a square of it is second term, and the first term is minus 3. Determine it is 7th term. First term is minus 3, so A is equal to minus 3, and fourth term is square of second term. A4 is equal to A2 raised to power 2. So A4 is A into R raised to power 3 and A2 is A into R square. After the simplification and substituting the value of A, we are left with this expression, minus 3 R raised to power 3 minus 3 raised to power 2 into R square is equal to 0. After the simplification, minus 3 R square into R minus 1 is equal to 0. So we can conclude that either R is equal to 0 or R minus 3 is equal to 0, R is equal to 0 or R is equal to 3. R cannot be 0, so R is equal to 3. R is equal to 3. We are to find the 7th term. So we can easily calculate the 7th term. A7 is A into R raised to power 6. A is minus 3 and R is 3. Minus 3 into 3 raised to power 6. After simplification, minus 2187. This is the 7th term of the given GP. Question number 5th. Which term of the following sequences is like here in this GP 2 under root 2, 4 up to so on 128. So which term, or we can say that 120 is which term in this GP. So we will calculate. Here GP is 2 into 2 under root 2, 4. So easily we can observe that first term is 2, common ratio. Second term dividing by first term is under root 2, common ratio is 2, first term is 2. So we don't know about 128, which term is 128. So we will denote it by AN. AN is equal to 128. That is equal to A R raised to power n minus 1, 128. We will put the values of A and R. 2 into 2 under root 2 raised to power n minus 1 is equal to 128. After the simplification, 2 raised to power n minus 1 over 2 is equal to 64. So 64 can be written as 2 raised to power 6. Here base, both the sides bases are same, so we will equate the powers.
On left hand side power is n minus 2 and on right hand side power is 6. N minus 1 over 2 is equal to 6. N is equal to 13. So 128 is 13th term of the given GP. Question number same, fifth question, C part. Here GP is 1 by 3, 1 by 9, 1 by 27. So we can observe A is 1 by 3, R is also 1 by 3. AN we will equate AN with the given number 1 over 19,683. From this expression we will calculate the value of N. A into R raised to power N minus 1. In the similar way we can do this question. 1 over 3 into 1 over 3 raised to power N minus 1. 1 over 3 raised to power N. Base same powers at 1 over 19,683 and it can be written as 3 raised to power 9. So again here bases are same, so we will equate powers. N is equal to 9. So 1 over 19,683 is the 9th term. This is the final answer. 9th term, no problem. Very simple questions are there. Next question number 7. Find the sum to indicated number of terms in each of the geometric progressions in the exercise 7 to 10. In all these questions we are to just calculate the sum. Given GP is 0.15, 0.00015. We are to calculate the sum up to 20 terms, first 20 terms. So here A is 0.15, R is after the simplification 0.1. So sum formula to calculate the sum is A into 1 minus R raised to power N over 1 minus R. A20 we have to calculate the first 20, sum of first 20 terms. So S20 is 0.15 into 1 minus 0.1 raised to power 20 over 1 minus 0.1. So 1 minus 0.1 is 0.9, 0.15 over 0.9 into 1 minus 0.1 raised to power 20. No need to simplify this expression. And after the simplification of first term we are left with 1 by 6 into 1 minus 0.1 raised to power 20. इस तरह की एक्सप्रेशंस को हमें फर्दर सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है. इसको एज इट इज़ आंसर में लिखा जा सकता है, कोई इशू नहीं है. तो ये 20 टर्म्स का सम आ गया है. और ये फार्मूला भी नोट कर लो कि जो सम वाला फार्मूला है जीपी वाला, ये यही यूज़ होना है हमने जहाँ भी सम कैलकुलेट करना है. तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. 10th क्वेश्चन है x रेज़ टू पावर 3, x रेज़ टू पावर 5, x रेज़ टू पावर 7 अप टू n टर्म्स. तो सिमिलरली हेयर a is equal to x raised to power 3, r is x square and formula is a into 1 minus r raised to power n over 1 minus r. So r is x square, so 1 minus x square raised to power n over 1 minus x square, x cube into 1 minus x raised to power 2n over 1 minus x square. Powers always multiplied. So this is the final answer of question number 10. Very simple question. Next question number 11th. Summation, we have to simplify summation k1 to 11 2 plus 3 raised to power k. तो इसको अलग अलग कर लेना. समेशन को 2 के ऊपर अलग अप्लाई कर दो, समेशन 3 रेज़ टू पावर k के ऊपर अलग समेशन अप्लाई कर दो. तो इसको एक्सपेंड करते हैं. k इज इक्वल टू 1 के लिए भी 2 ही है, कांस्टेंट है ये, प्लस 2 के लिए भी. तो कितनी बार रिपीट होना है? 2 11 टाइम्स. इसी तरह k को 1 पुट करते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखने के लिए. 3 रेज़ टू पावर k प्लस 3 रेज़ टू पावर 1 प्लस 3 रेज़ टू पावर 2 प्लस 3 रेज़ टू पावर 3 अप टू 3 रेज़ टू पावर 11. जो पहली टर्म है, पहली हमारे पास सीरीज आई है, वो 2 प्लस 2 प्लस 2 11 टाइम्स है, तो 2 इंटू 11 22 आ गया है. और ये जीपी है, और जीपी का सम का फॉर्मूला अभी आपको बताया है. क्या होता है इसमें? फर्स्ट टर्म 3 है, कॉमन रेशियो भी 3 है,
तो 3 इंटू 3^n-1/3 तो n 11 टर्म्स है टोटल, इसकी पावर में 11 है। सिंप्लीफाई करके हमारे पास ये आ गया है 22 प्लस 3/2 इंटू 3^11-1। ये फाइनल आंसर है क्वेश्चन नंबर 11 का। क्वेश्चन नंबर 12, द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ जीपी इज 39/10 and their product is 1. Find the common ratio and the terms. तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ आपने ध्यान रखना है, जब भी 3 टर्म्स का सम एंड प्रोडक्ट दिया है या 5 टर्म्स का सम एंड प्रोडक्ट दिया है तो नोट करना है किस तरह की जीपी आपने ज्यूम करनी है। A/R, ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। A/R, A, AR, ये एक स्टैंडर्ड नोटेशन है कि जब भी सम एंड प्रोडक्ट 3 टर्म्स का दिया हो तो ऐसी ही जीपी हम लोगों ने ज्यूम करनी है। ये एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, आप चेक कर सकते हैं। कॉमन रेशो इसमें सेम रहेगी R, और ये तीनों जो टर्म्स हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं। 3 टर्म्स आर इन जीपी, प्रोडक्ट दी है 1 और प्रोडक्ट 1 दी, R कैंसिल हो जाएगा, A की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई है। सम 39/10 दिया, उसको सिंप्लीफाई करके हमारे पास एक क्वाड्रेटिक आ गई है। एक क्वाड्रेटिक सिंप्लीफाई किया, जस्ट बेसिक मैथ्स है यहाँ पर। और क्वाड्रेटिक कौन सी आई है? 10r² -29r प्लस 10 इज इक्वल टू 0। इसको हमने फैक्टराइज कर दिया है, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म -25r -4r एंड इसके दो फैक्टर बने हैं 2r -5, 5r -2r इज इक्वल टू 0। सो यहाँ से दो वैल्यूज आती हैं हमारे सामने, जहाँ तो यहाँ पर क्या बचता है 2 कॉमन लिया है यहाँ से, यहाँ भी 2 आना है, 5r -2। तो r की वैल्यूज आ रही हैं, जहाँ तो 5/2 आ रही है, जहाँ 2/5 आ रही है। तो एक तो रेशो कहा था उसने, दो रेशोज पॉसिबल रेशोज आ रही हैं, और फर्दर टर्म्स भी हमारे पास दो तरीके से आएंगी। अगर r 5/2 लेते हैं तो a तो 1 ही है, फिक्स है, तो हमारे पास जो टर्म्स हैं इसमें वैल्यू पुट करेंगे r और a की, और हमारे पास ये जीपी आ गई है, ये 3 टर्म्स आ गई जो उसने पूछी थी 3 टर्म्स। अगर रेशो ये है 2/5 है, a तो फिक्स ही है, फिर भी इसी में वैल्यूज पुट करेंगे, और हमारे पास जो अब टर्म्स आई हैं, जो उसने नंबर्स पूछे थे, जो टर्म्स जीपी की पूछी थी, और कंडीशन क्या है, दोनों केसेस में ही प्रोडक्ट जो है वो 1 है और जो सम है वो 39/10 है, दोनों केसेस में ही। इसलिए ये दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, दो तरह की हमारे पास टर्म्स एग्जिस्ट करती हैं जो जीपी में भी हैं और जिनका प्रोडक्ट भी 1 है और जिनका सम 39/10 है। 14th क्वेश्चन, द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ अ जीपी इज 16 and the sum of next 3 terms is 128. Determine the first term, the common ratio and the sum to n terms of a GP. हमने ज्यूम कर लिया यहाँ पर फर्स्ट टर्म, किसी भी जितने भी सम हम कर रहे हैं सभी में हम लोग फर्स्ट टर्म a ले रहे हैं और कॉमन रेशियो को r लेके चल रहे हैं, चाहे मेंशन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। हमें सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स दिया है, इसका मतलब S3 दिया है 16, और नेक्स्ट 3 टर्म्स का सम 128 दिया है। इस चीज को नोट करना है कि नेक्स्ट 3 टर्म्स का सम कैसे फाइंड करेंगे, सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म्स माइनस सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स। पहली 3 टर्म्स का माइनस कर दिया, और ये वाला कौन सा सम रह गया है, टर्म नंबर 4 टू टर्म नंबर 6, वो 128 है। S3 की वैल्यू हमें ऑलरेडी दी थी यहाँ पर 16, जहाँ से हमने पुट कर दी है और सिंप्लीफाई कर दिया है। S6 कितना आ गया है 144, और S6 की वैल्यू जो भी बनती है फॉर्मूला बनता है n2r⁻6 - 1/r-1, और ये हमारे पास जो S3 है वहाँ से जो भी फार्मूला अप्लाई करके n2r⁻3 - 1/r-1 16, इसको स्टेटमेंट नंबर 1 कह दिया, इसको यूज करेंगे। यहाँ पर हमने आइडेंटिटी लगानी है a² - b² की, और ये आइडेंटिटी लगाने के बाद हमारे पास क्या आ गया है a - b a + b। ये जो टर्म्स है इनको इकट्ठा कर लिया गया है, ये वाली टर्म्स को, इसकी वैल्यू दी है एक स्टेटमेंट नंबर 1 में, आप देख सकते हैं स्टेटमेंट नंबर 1 में इसकी वैल्यू 16 दी है, तो ये वैल्यू हमने यहाँ पुट कर देनी है 16। इसको सिंप्लीफाई कर लिया है, सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास r की वैल्यू 2 आ गई है।
आर की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट की है 2, वहाँ से ए आ गया है 16/7 और एस एन सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स कैलकुलेट करना है। फार्मूला सेम है, आर की वैल्यू 2 आई है, 2n की ए की 16/7 आई। जस्ट पुट करके 2 - 1 डिनोमिनेटर 1 हो गया है, तो फाइनल आंसर इज 16/7 इंटू 2n-1। एक ये है सम ऑफ n टर्म्स, एक रेशियो पूछा था वो ये आ गई है, फर्स्ट टर्म भी आ गई है 16/7। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमने ये नोट कर लो आप लोग साइड बाय साइड। यस, 16 क्वेश्चन, फाइंड अ जीपी फॉर विच सम ऑफ first two terms is -4 and fifth term is 4 times the third term। जो रिलेशन उसने बताया है उसके अकॉर्डिंग लिख रहे हैं। सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स -4 दिया है। सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स का फार्मूला a/r² -1/r-1। यहाँ फार्मूला लगाया है a - b a + b d की आइडेंटिटी, यहाँ से एक कैंसिल हो गया है, r-1 a × r+1 = -4 बचा है। जो उसने दूसरी कंडीशन क्या दी है वो क्या कहता है, फिफ्थ टर्म इज 4 टाइम्स, फिफ्थ टर्म इज 4 टाइम्स द थर्ड टर्म। a5 क्या होता है, a × r⁴ a × r², 4 टाइम्स a × r², a कैंसिल हो जाएगा, r⁴ - 4r² = 0, जहाँ से r² कॉमन लेके r² 0 नहीं हो सकता, तो r² - 4 0 होगा। r की वैल्यू जो पॉसिबल वैल्यूज हैं +-2 है। जब r2 है तो इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, इसमें हम लोग तो r2 पुट करेंगे, वहाँ से a की वैल्यू -4/3 आएगी और gp क्या आएगी, -4/3 -8/3। ये कैसे आई है, ar² इस तरीके से, जहाँ a और r की वैल्यूज पुट करके -16/3। इसी तरीके से जब r की वैल्यू -2 है उस केस में a कैलकुलेट करेंगे, पहले a की वैल्यू कैलकुलेट की है, 4 आ गया है, और जीपी क्या होगी, हमने वैल्यूज पुट कर दी हैं इसमें जो जनरल फॉर्म थी हमारे पास, और जो रिक्वायर्ड जीपी इज 4 - 4, -8, -16, -32 अप टू सो ऑन। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 क्वेश्चन है, इफ द 4th, 10th एंड 16th टर्म ऑफ अ जीपी आर एक्स वाई जेड रिस्पेक्टिवली प्रूव दैट एक्स वाई जेड आर इन जीपी। जीपी की 4th टर्म दी है a4x, 4th टर्म को x कहा है, 10th टर्म को y और 16 टर्म को z कहा गया है, और हमने वो फार्मूला लगाया जनरल टर्म वाला, an = ar⁴n-1। क्या बना, ar³ = x, ar⁴9 = y, ar⁴15 = z। तो मैं आपको यहाँ फिर से बताना चाहता हूँ कि कोई भी 3 टर्म्स अगर जीपी में है तो क्या होता है, कब उनको जीपी में कहेंगे, जब उनकी कॉमन रेशियो मीन्स y/x शुड बी इक्वल टू z/y। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आएगा, y² = xz। आपको याद होगा AP के लिए क्या करते थे, AP के लिए तीनों टर्म्स AP में कब होती हैं, जब y = x + z/2 लिखते हैं। जब यहाँ पर क्या है, y² = x × z है, तो हम लोग कहेंगे AXYZ आर इन जीपी। तो क्या करना है, y² लेके चलते हैं, y² a × r⁴9 होल स्क्वायर, सिंप्लीफाई करके a आ गया, फिर xz को सॉल्व किया है, वो भी सेम आ गया, y² और xz सेम है, इसका मतलब XYZ आर इन जीपी, यही हमने प्रूव करना था। फाइंड द सम ऑफ, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल एज डिफरेंट क्वेश्चन। सम ऑफ n टर्म्स ऑफ अ सीक्वेंस, सीक्वेंस कैसी है, 8, 88, 888, 8888 अप टू सो ऑन। सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स कैलकुलेट करना है। देखो फ्रेंड्स, ये कोई भी सीक्वेंस स्टार्टिंग में आपको जो दिख रही है, ये किसी भी फॉर्म में नहीं है सीक्वेंस, ना तो ये एपी है ना ही जीपी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल रिड्यूस इट इनटू जीपी एंड देन वी विल कैलकुलेट द सम। सो कैसे रिड्यूस करना है, चाहे जहाँ 7 7 आ जाए, चाहे जहाँ हमारे पास आ जाए 6 6, तो जो स्टेप्स हैं वो ऑलमोस्ट सेम है, ध्यान में रखना। सबसे पहले क्या करना है, इसमें से 8 कॉमन लेना है, n टर्म्स तक है जिस सारी जो सीरीज है, इसमें उसके बाद 9 के साथ डिवाइड करना है और मल्टीप्लाई करना है, 9 + 99 प्लस इस तरह से
फिर 9 को क्या लिखा जा सकता है 10 - 1, इसको 100 - 1, फिर 1000 - 1 अप टू सो ऑन। अब 10 वाली टर्म्स को अलग कर लो, 10 + 100 + 1000 अलग कर ली और 8/9 बाहर ही रखा है कॉमन। -1 इसमें से माइनस कॉमन ले लिया तो 1 + 1 + 1 अप टू सो ऑन n टर्म्स तक, ये भी n टर्म्स तक है। आगे सॉल्व करते हैं। फर्स्ट ये देख लो फ्रेंड्स, ये जीपी बन रही है, जीपी का फॉर्मूला लग जाएगा। ये तो वैसे ही 1 रिपीट हो n टाइम्स, तो इसका मतलब n हो गया 8/9 आगे मल्टीप्लाई हो गया -8n, ये तो आ जाएगा -8/9 टाइम्स n, और ये जीपी बन जाएगी। 10 × 100 कैन बी रिटन एज 10 स्क्वायर, 1000 कैन बी रिटन एज 10 क्यूब, तो ये जीपी बन जाएगी। जीपी का फॉर्मूला क्या होता है a × r⁻n - 1 / r - 1, तो जहाँ हमने r भी 10 ही है, r⁻n - 1 / 10 - 1, ये सिंप्लीफाई करके हमारे पास फाइनल आंसर जो है 80/81 × 10⁻n - 1 - 8n/9, ये जो हमारे पास प्रोग्रेशन दी थी, जो सीरीज दी थी, उसका सम आ गया है। नेक्स्ट, फाइंड द सम ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स ऑफ द सीक्वेंसेस 2, 4, 8, 16, ये दो सीक्वेंसेस दी हैं। 128, 32, 8, 2, 1/2, दोनों को हमने मल्टीप्लाई कर दिया। वो कहता प्रोडक्ट का सम कैलकुलेट करो। पहले प्रोडक्ट की है, प्रोडक्ट करके हमारे पास आ गया है 256, 128, 64, 32, 16, और इसका सम कैलकुलेट करने के लिए चेक करते हैं कि ये कैसी है। जीपी है तो सेकेंड टर्म ओवर फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म ओवर सेकेंड टर्म कैलकुलेट किया है तो 1/2 आता है। इसका मतलब ये जीपी है, जीपी है तो फर्स्ट टर्म 256 है और कॉमन रेशियो 1/2 है। हमने यहाँ पर जीपी का फॉर्मूला लगाया है सम का, और कैलकुलेट करके हमारे पास जो फाइनल आंसर है इसका 496 आ गया है। क्वेश्चन नंबर 19 का आगे बढ़ते हैं। 20th क्वेश्चन, शो दैट द प्रोडक्ट ऑफ, सेम टाइप का क्वेश्चन है ऑलमोस्ट, दोनों जो सीक्वेंसेस हैं इनको हमने प्रोडक्ट करना है और उसके बाद हमने शो करना है कि द प्रोडक्ट फॉर्म्स अ जीपी एंड फाइंड द कॉमन रेशियो, वी हैव टू कैलकुलेट द कॉमन रेशियो। ये दोनों हमने मल्टीप्लाई कर दिया है, दोनों ही सीक्वेंसेस को a × कैपिटल A, AR × कैपिटल AR, सभी को मल्टीप्लाई करके एक ऑर्डर में अरेंज कर दिया है। R × कैपिटल R को इकट्ठा लेके स्क्वायर कर दिया है। चेक करते हैं ये जीपी है कि नहीं। सेकेंड टर्म ओवर फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म ओवर सेकेंड टर्म हमने कैलकुलेट किया है तो स्मॉल r × कैपिटल R आ रहा है। इसका मतलब कॉमन रेशियो सेम है और रेशियो सेम आ रही है। इसका मतलब है कि जो जीपी है और जीपी फर्स्ट टर्म दी है, कॉमन रेशियो हमने कैलकुलेट कर ली है। कॉमन रेशियो उसने कहा था वो r × कैपिटल R आ गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ गया 21, फाइंड द 4 मेंबर्स फॉर्मिंग ए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन in which the third term is greater than the first term by 9 and the second term is greater than fourth term by 18। तो हम मान लेते हैं कि 4 नंबर्स जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के वो कौन से हैं, a × AR × AR² × AR³। अब जो उसने दिया है उसके अकॉर्डिंग क्या कह रहा है कि थर्ड टर्म इज ग्रेटर देन द फर्स्ट टर्म बाय 9, a3 = a + 9। सिंप्लीफाई किया है AR² = a + 9, AR² - a = 9, a कॉमन ले लिया, R² - 1 = a × R² - 1 = 9, इक्वेशन नंबर 1। दूसरा उसने कहा है सेकेंड टर्म इज ग्रेटर देन द फोर्थ टर्म बाय 18, a2 is equal to a4 + 18, a2 is AR, a4 is AR³ + 18। ए सिंप्लीफाई कर लिया हमने, हमारे पास क्या आ गया है -AR × R² - 1 = 18। अब डिवाइड कर दिया है 1 और 2 को, R² - 1 कैंसिल हो गया है, a भी कैंसिल हो गया है, -1/r = 1/2, और सिंप्लीफाई करके हमारे पास जो r की वैल्यू आई है यहाँ पर r इज -2। हमें r कैलकुलेट कर लिया है। आगे सिंप्लीफाई करते हैं क्वेश्चन को, और इसमें फर्स्ट जो इक्वेशन है उसमें r पुट किया है -2 और हमारे पास a की वैल्यू 3 आ गई है। नंबर उसने पूछे थे वो कौन कौन से थे, a × AR, तो सिंप्लीफाई कर दिया, a 3 है, AR -6, AR² 12 और AR³ -24। तो हमारे पास ये 4
जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस के मेंबर्स ने पूछे थे वो हमारे पास आ गए हैं 3, -6, 12, -24। क्वेश्चन नंबर 22, if the pth, qth and rth term of a GP are small a, small b, small c respectively, prove that a into p q raised to power minus r, b raised to power r minus p, c raised to power p minus q is equal to 1। इसको हमने 1 प्रूव करना है। यहाँ ध्यान में रखना है कि हम लोग जनरली फर्स्ट टर्म को ए कहते हैं, लेकिन जहाँ क्वेश्चन में ही ए दे दिया है इसका मतलब हम लोग फर्स्ट टर्म को ए नहीं कह सकते। मैं कैपिटल ए ले रहा हूँ, फर्स्ट टर्म को कैपिटल ए और कॉमन रेशियो जो है उसको कैपिटल आर लेके चल रहा हूँ। तो क्या आएगा, ए पी इज इक्वल टू ए आर पी माइनस 1 इज इक्वल टू ए आर क्यू माइनस 1 इज इक्वल टू बी एंड ए आर आर माइनस 1। यहाँ ए आर कैपिटल आर रेज़ टू पावर आर माइनस 1 क्योंकि आर्थ टर्म इज इक्वल टू सी। डेफिनेशन लगाई है क्योंकि यहाँ बार बार वही फॉर्मूला हम लोग यूज कर रहे हैं कि ए एन इज इक्वल टू ए आर रेज़ टू पावर एन माइनस 1, ये फॉर्मूला यूज हो रहा है। और जो लेफ्ट हैंड साइड उसने दी थी हमने ए स्मॉल बी और स्मॉल सी की वैल्यूज पुट कर दी हैं, और वैल्यूज पुट करने के बाद हमने सबसे पहले ए बेस सेम है पावर क्यू माइनस आर माइनस पी और पी माइनस क्यू ए की कैपिटल ए की पावर आनी, बेस सेम है तो सभी पावर्स को हमने ए रेज़ टू पावर क्यू माइनस आर, ए रेज़ टू पावर आर माइनस बेस सेम पावर्स ऐड। दूसरे केस में भी आर की अभी बेस सेम है, पावर्स ऐड कर देनी है, सभी पावर्स कैंसिल हो जाएंगी और हमारे पास ए की पावर में भी 0 और आर की पावर में भी 0 बचेगा। एनीथिंग रेज़ टू पावर 0 इज इक्वल टू 1। सिंप्लीफाई करके हमें 1 आ गया है, राइट हैंड साइड 1 है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 23rd, इफ द फर्स्ट एंड द nth टर्म ऑफ अ जीपी आर स्मॉल ए एंड स्मॉल बी रिस्पेक्टिवली and p is the product of n terms, prove that p square is equal to ab पावर n। बहुत सिंपल है, फर्स्ट टर्म a है और लास्ट टर्म a n जो है वो b दी है, उसको कैसे लिखा जा सकता है, a इंटू आर रेज़ टू पावर n माइनस 1। तो जो gp हमारे पास आ रही है वो कैसी है, a इंटू ए आर इंटू ए आर स्क्वायर, क्योंकि प्रोडक्ट p दी है, प्रोडक्ट ऑफ ऑल द टर्म्स ऑफ अ जीपी, तो वो दिया है हमें p कैपिटल P। तो सभी को मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास a कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है n टाइम्स, तो a पावर n हो जाएगा। r बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी 1 + 2 + अप टू n माइनस 1। ये फॉर्मूला है n इंटू n माइनस 1/2। जिस सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का फॉर्मूला होता है n इंटू n + 1/2, लेकिन ये नेचुरल नंबर n माइनस 1 तक है इसलिए n इंटू n माइनस 1/2 इज इक्वल टू p। अब p स्क्वायर किया है, हम लोग लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं, p स्क्वायर है a रेज़ टू पावर 2n आर पावर n इंटू n माइनस 1 रह जाएगा। इसमें से 2n में से a पावर n अलग करते हैं, a पावर n अलग कर ली है, r रेज़ टू पावर n माइनस 1 की पावर n लिख दिया है, पावर से मल्टीप्लाई होती है फिर वही आ सकता है। यहाँ से हमने ये दो टर्म्स को इकट्ठा कर लिया है क्योंकि b a पावर n तो आ गया है, b पावर n चाहिए, तो ये b की वैल्यू है a रेज़ टू पावर n इंटू b रेज़ टू पावर n एंड वी कैन राइट a इंटू b रेज़ टू पावर n, यही हमने प्रूव करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं 24th, शो दैट द रेशियो ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ अ जीपी टू द सम ऑफ टर्म्स फ्रॉम n माइनस 1th टू 2nth टर्म इज 1/r रेज़ टू पावर n। बहुत सिंपल है, जीपी कौन सी है जिसमें 2n टर्म्स है, ए आर स्क्वायर अप टू ए आर n माइनस 1। यहाँ तक n टर्म्स हो गई हैं, ये n टर्म्स हैं, इसके बाद ये n टर्म्स अलग है। ये हमने इन दोनों के सम की रेशियो कैलकुलेट करनी है, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स a इंटू आर रेज़ टू पावर n माइनस 1/r माइनस 1। अब नेक्स्ट टर्म्स जो हमारे पास n प्लस 1 टर्म टू 2nth टर्म जाती है वो कौन सी है, ए आर रेज़ टू पावर n प्लस 1 अप टू ए आर रेज़ टू पावर 2n माइनस 1। अब सम इसका कैलकुलेट करना है, रेशियो ये जीपी है जिसका सम कैलकुलेट करना n टर्म्स है, उसमें फर्स्ट टर्म ए आर रेज़ टू पावर n है, कॉमन रेशियो सेम है, इस फॉर्मूला सम का लगाया, जस्ट ए चेंज होना है। जब रेशियो इसके सम को s डैश कह दिया गया है, s डैश n,
जब रेशियो कैलकुलेट की है SN इज टू SN डैश तो सब कुछ कैंसिल हो गया है, जस्ट R पावर 1 ओवर R पावर n बचा है। रिक्वायर्ड रेशियो इज 1 इज टू R रेज टू पावर n। दिस इज द फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 है। इफ a, small b, small c and d, small d are in GP, show that a square plus b square plus c square into b square plus c square plus d square is equal to ab plus bc plus cd होल स्क्वायर। ये शो करना है। अगर ये GP में है तो कैसी होंगी? फर्स्ट टर्म अगर a है तो सेकंड टर्म कैसी होगी? AR मीन्स b इज इक्वल टू AR, c इज इक्वल टू AR स्क्वायर, d इज इक्वल टू AR क्यूब। सिंपली वैल्यू पुट करनी है ABC की, और वैल्यू पुट करने के बाद सिंप्लीफाई कर लिया हमने, और लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास बच गई है a पावर 4 इंटू आर स्क्र 1 प्लस आर स्क्र प्लस आर रेज टू पावर 4 रेज टू पावर 2। और इसी तरह हम लोग लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व हमने कर लिया है, राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे, और जो राइट हैंड साइड है वो भी अगर इक्वल आ गई तो हम कंक्लूड कर सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में भी ABC की वैल्यू A, B, C और D की वैल्यूज पुट की, A इंटू AR, AR इंटू AR स्क्र इंटू AR क्यूब। सिंप्लीफाई करके यहाँ से A स्क्र अगर कॉमन लेते हैं A स्क्र इंटू R, इसके ऊपर अगर स्क्र अप्लाई करते हो तो A पावर 4 इंटू आर स्क्र 1 प्लस आर स्क्र प्लस आर इज टू पावर 4 होल पावर 2। तो यही हमारे पास राइट हैंड साइड है। जो राइट हैंड साइड आई है वही लेफ्ट हैंड साइड है, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, यही हमने प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 26, इंसर्ट टू नंबर्स बिटवीन 3 and 81 सो दैट द रिजल्टिंग सीक्वेंस इन GP इज GP। बहुत सिंपल है, N1 और N2 दो नंबर ले लेते हैं, 3 फर्स्ट नंबर है, फर्स्ट टर्म है, लास्ट टर्म 81 है GP की, N1 N2 हमने इंसर्ट किए हैं। तो फर्स्ट टर्म A है 3, A 481 है, वहाँ से फॉर्मूला लगा के R की वैल्यू 3 आ गई है। N1 क्या होगा? AR, 3 इंटू 3 9, N2 AR स्क्र 3 इंटू 9 27। हमारे पास दो नंबर्स आ गए हैं 9 और 27। तो GP कौन सी बन गई? 3, 9, 27, 81। Find the value of n so that a power n plus 1 plus b power n plus 1 over a power n plus b power n may be ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन A एंड B। ऐसा क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हैं इन केस ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। यहाँ वहाँ AM दिया था, जहाँ इक्वल टू GM दिया है इस एक्सप्रेशन को। यहाँ हमने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया है, डिनोमिनेटर को A पावर n प्लस B पावर n को मल्टीप्लाई कर दिया है। बेस सेम पावर Z वाला कंसेप्ट अप्लाई हो गए, A की पावर बन जाएगी n प्लस 1 ओवर 2, B की पावर 1/2, A पावर 1/2, B रेज टू पावर n प्लस 1/2। अब ये सारी टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड लेके जा रहे हैं। उससे पहले A पावर n प्लस 1 को कैसे लिख रहा हूँ मैं? A प्लस 1 ओवर 2 1/2, ये 1 ही है बेसिकली, स्प्लिट करके लिखा है। B की पावर भी जो है उसमें 1 को 1/2 प्लस 1/2 लिखा है। ये टर्म अलग कर लेंगे पावर, और ये 1/2 पावर अलग कर लेंगे। अब इसमें A पावर n प्लस 1 वाली टर्म, दोनों टर्म्स को इकट्ठा कर लेते हैं, फिर ये वाली दो टर्म्स को इकट्ठा कर लेते हैं, ये वाली दो टर्म्स को, और इसमें से A पावर n प्लस 1 कॉमन आ जाएगा, A पावर 1/2 माइनस B पावर 1/2, और इसमें से B पावर n प्लस 1/2 कॉमन आ जाएगा, B पावर 1/2 A पावर माइनस A पावर 1/2। सेम पेयर्स बनाने के लिए यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया है, और हमारे पास क्या बचा? माइनस B पावर n प्लस 1/2 A पावर 1/2 माइनस B पावर 1/2, ये कॉमन आ जाएंगे दोनों फैक्टर। और हम लोग हमारे पास जो नेक्स्ट एक्सप्रेशन बचेगी वो क्या बचेगी? A पावर 1/2 माइनस B पावर 1/2 इंटू A पावर n प्लस 1/2 माइनस B पावर n प्लस 1/2 इज इक्वल टू 0। A और B की इक्वल नहीं हो सकते, इसलिए ये फैक्टर 0 नहीं हो सकता, ये दूसरा फैक्टर 0 होगा। वहाँ से हमने सिंप्लीफाई करके हमारे पास क्या आ गया है? A ओवर B रेज टू पावर n प्लस 1/2 1 है, 1 को लिखा जा सकता है A ओवर B रेज टू पावर 0। बेस सेम है, पावर्स को इक्वेट करना है। n प्लस 1/2 इज इक्वल टू 0, n इज इक्वल टू माइनस 1 ओवर 2, n की वैल्यू कैलकुलेट करनी थी। ये हमारे पास आ गया है फाइनल आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं।
28th sum, the sum of two numbers is 6 times their geometric mean. Show that numbers are in the ratio 3 plus 2 is 2 into under root 2 is to 3 minus 2 under root 2. दो नंबर्स हैं a और b, हम मान लेते हैं उनका जो हमारे पास sum of two numbers is means a plus b is equal to 6 times the geometric mean, 6 times under root ab. स्केयरिंग की है a प्लस बी होल स्केयर इज इक्वल टू 36ab. अब हमारे पास ये फार्मूला होता है a माइनस बी का होल स्केयर इज इक्वल टू, सिंप्लीफाई करके देख लेना सेम आएगा, राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करोगे तो a माइनस बी का होल स्केयर ही आएगा. a प्लस बी होल स्केयर माइनस 4ab, यहाँ वैल्यू पुट कर दी ए बी की, a प्लस बी होल स्केयर की वैल्यू 36ab माइनस 4ab 32ab, सिंप्लीफाई करके a माइनस बी की वैल्यू जो है 4 टाइम्स अंडर रूट 2 अंडर रूट ए बी. इसी तरह इक्वेशन नंबर 1 और 2 को सॉल्व करेंगे, क्योंकि इक्वेशन नंबर 1 में a प्लस बी की वैल्यू आई है, यहाँ a माइनस बी की. एक बार हम लोग ऐड करते हैं, ऐड करने के बाद क्या आ गया है 2a 6 प्लस 4 अंडर रूट 2a अंडर रूट ए बी, और यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ गई है 3 प्लस 2 टाइम्स अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट ए बी, क्योंकि 2 के साथ हमने डिवाइड कर दिया ये वाली दोनों टर्म्स को. इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं a की वैल्यू, और a की वैल्यू पुट करने के बाद सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास b की वैल्यू बची है 3 माइनस 2 अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट ए बी. अब रेशियो निकालनी है दो नंबर्स की, रेशियो क्या आएगी 3 प्लस 2 अंडर रूट 2 ओवर 3 माइनस 2 अंडर रूट 2, ये ए बी अंडर रूट ए बी कैंसिल हो जाएगा. यही हमने प्रूव करना था इस क्वेश्चन में. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 29th. इफ a एंड g बी द am एंड gm respectively between two positive numbers, prove that the numbers prove करने के ये हैं. हम लोग इनिशियली मान लेते हैं कि let two positive numbers are small a and small b. जो उसने दिया है am दिया है, तो इसका मतलब ab ओवर a प्लस b ओवर 2, और वहाँ से a प्लस b की वैल्यू कितनी आ गई 2a. इसी तरह से हमारे पास दूसरा है g इज इक्वल टू अंडर द रूट ए बी, और स्केयरिंग करने के बाद ए बी इज इक्वल टू जी स्केयर आ गया है. अब उस वही फॉर्मूला जो अभी यूज किया है a माइनस बी, क्योंकि a प्लस बी की वैल्यू है हमारे पास, अगर स्मॉल a माइनस बी की वैल्यू भी आ गई तो हम लोग सिमिलरली सॉल्व कर लेंगे, a और b की वैल्यू निकाल लेंगे. a माइनस बी होल स्केयर इज इक्वल टू a प्लस बी होल स्केयर माइनस 4ab, वैल्यू पुट की हमने, और सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास क्या आ गया a माइनस बी का स्केयर को हम राइट हैंड साइड शिफ्ट करेंगे, स्केयर रूट बन जाएगा. स्केयर रूट बनने के बाद 4 का स्केयर रूट 2, हम बाई डिफॉल्ट पॉजिटिव वैल्यूज ले रहे हैं, अंडर द रूट a प्लस जी इंटू a माइनस जी. अब a प्लस बी कितना है 2a है, दोनों को ऐड करने के बाद b और b कैंसिल हो जाएगा, और 2a किसके इक्वल आ गया 2a प्लस 2 टाइम्स अंडर रूट a प्लस जी अंडर रूट a माइनस जी. अब 2 इधर कैंसिल हो गया है, थ्रू आउट कॉमन लेके a की वैल्यू स्मॉल a की वैल्यू क्या आ गई है कैपिटल A प्लस अंडर द रूट a प्लस जी इंटू a माइनस जी. इक्वेशन नंबर 3 में पुट किया है, b किसके इक्वल आ रहा है 2a माइनस a. सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास b की वैल्यू कैपिटल A माइनस अंडर द रूट a प्लस जी इंटू a माइनस जी. इकट्ठा लिख लें दोनों वैल्यूज को, a और b की वैल्यू को, तो a प्लस माइनस अंडर द रूट a प्लस जी a माइनस जी. ये जो दो पॉजिटिव नंबर थे जिनमें कैपिटल A जो है वो am बिटवीन टू नंबर्स है, और कैपिटल G इज द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन टू नंबर्स, तो नंबर्स आर a प्लस माइनस अंडर द रूट a प्लस जी इंटू a माइनस जी. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. व्हाट विल ₹500 अमाउंट्स टू in 10 years after it is deposited in the bank, which pays annual interest rate 10% compounded annually. वो कहता है कि 500 रुपया अगर 10 साल के लिए बैंक में जमा करवा दिया जाए तो उसका जो एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% है, और 10 साल के बाद जो है वो अमाउंट कितनी बन जाएगी हमने ये बताना है. तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला मैं याद करवा दूं आपको कि अमाउंट क्या होती है p इंटू 1 प्लस आर ओवर 100 रेज टू पावर n. ये कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला है. तो इसमें इनिशियली पहले साल जब डिपॉजिट करवाया तो 500 थी, एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर पहले साल के एंड पे 500 इंटू 1 प्लस
10/100 सॉल्व करके, r की वैल्यू 10 है तो 10/100 अगर सॉल्व करते हैं 1 + 10/100 तो सॉल्व करने के बाद 1/10 ही बचता है। तो इसको सिंप्लीफाई किया है 1 + 1 0.1 1.1। ये पहले साल के एंड पे हो गई, पावर 1 आ रही इसकी। सेकेंड ईयर के एंड पे पावर 2 है। इसी तरह ये तो एक जीपी बन गई है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, इसी तरह 10th ईयर में जाके कितनी अमाउंट बनती है उसकी डिस्कशन हमने करनी है एट द एंड ऑफ द 10th ईयर। तो ये जीपी बन गई है, हम लोग जस्ट 10th टर्म कैलकुलेट कर लेंगे। जीपी कैसी है, जिसमें पहली टर्म 500 × 1.1 है, 500 × 1.1 का स्क्वायर है। ए फर्स्ट टर्म ये आ गई, कॉमन रेशियो 1.1 है। अमाउंट एट द एंड ऑफ द 10th ईयर तो क्या बनेगी 10th टर्म ऑफ जीपी, तो ए × r⁹ 9। सिंप्लीफाई करते हैं, ए ये है, बेस सेम पावर z 1.1 की पावर 1 ऐड होकर पावर 10 बन जाएगी। तो ये अमाउंट हो जाएगी आपके पास एट द एंड ऑफ द 10th ईयर, ₹500 × 1.1⁻10। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, इफ AM एंड GM ऑफ रूट्स are roots of if A and GM of roots of a quadratic equation are 8 and 5, अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स हैं, उनका AM 8 है और GM 5 है, वो कहता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑब्टेन करनी है। कैसे करनी है हमें नहीं पता, रूट्स कैसे हैं। अगर हम अज्यूम कर लें लेट A and B आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सो हमें क्या दिया है, AM ऑफ रूट्स का मतलब है a + b/2 = 8 दिया है। यहाँ से सम ऑफ रूट्स कैलकुलेट कर लिया, 16 आ गया। और हमें ज्योमेट्रिक मीन भी दिया है रूट्स का, वो क्या आ गया, √AB = 5। वहाँ से AB की वैल्यू मीन्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आ गया 25। तो अगर हमें सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पता है तो हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकाल सकते हैं, दैट इज x² - सम ऑफ रूट्स × x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स = 0। तो सम ऑफ रूट 16 था, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 25 है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है x² - 16x + 25। ये कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जिसके रूट्स का जो अर्थमेटिक मीन है वो 8 है और जो ज्योमेट्रिक मीन है वो 5 है। ये लास्ट क्वेश्चन था 32 नंबर। जो थोड़े से क्वेश्चन इन बिटवीन रह गए हैं वो आपने खुद करने हैं। लेक्चर नंबर 3 है, लेक्चर नंबर 4 में नेक्स्ट एक्सरसाइज की डिस्कशन करेंगे और आपने इसी तरह काम करते रहना है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। सो डियर फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।